آج ہم لاہور ہائی کورٹ اس لیے آئے کہ ہم اپنے وکلاء سے بات کر سکیں. رول آف لا کی جو سمجھ ہے وہ وکیلوں کو ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا کیا نقصان ہوا, 27ویں آئینی ترمیم کا کیا نقصان ہوا. عمران خان صاحب نے جیل سے کال دی تھی کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنا ہے اور آئسولیشن کے خلاف بھی ہم بڑا سخت ری ایکشن دیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے راتوں رات دن دہاڑے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک ان الیکٹڈ حکومت کو مسلط کیا. تو اس وقت پنجاب کے اوپر قبضہ ہے, تو جب آپ ان سے قبضہ چھڑائیں گے تو ریئیکشن تو آئے گا ان چیزوں کا. ایک ہی جماعت ہے پورے پاکستان میں جو سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے, پنجابیوں کو بھی, پختونوں کو بھی, بلوچوں کو بھی, سندھیوں کو بھی, اور وہ ہے تحریک انصاف. آپ مجھے ایک موٹر وے, سنگل موٹر وے جو پنجاب حکومت نے بنائی ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مجھے نام لے دیں. کے پی کی پولیس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, پنجاب کی پولیس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, کوئی بھی آپ کو ناکے کے اوپر تنگ نہیں کرے گا. جتنے ہم نے ڈیمز بنائے جو آپ کو سستی بجلی بنا کے دے رہے ہیں, جو آپ کو انوائرمنٹل سپورٹ دے رہی ہے وہ بجلی بنا رہے ہیں, ان سے پوچھا کہ آپ کتنی بجلی بنا رہے ہیں. یہ بند کمروں میں غلط فیصلے کرتے ہیں, ان کی مشیر جو ہے ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا سارا قافلہ یہاں پہ ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی صاحب ہے, شاہد کھٹک صاحب ہے. شاہد کھٹک صاحب 2 روزہ آپ کا دورہ آج تقریباً شام کو مکمل ہو جائے گا, تو ابھی اگلا لائے عمل کیا ہے, کیا کریں گے, کیا کرنا ہے, کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ ہم انشاءاللہ کل تک ادھر ہی ہیں, پھر ہم نے آگے جانا ہے 1-2 جگہ پہ, اور ابھی تو ہم انشاءاللہ زمان پارک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اسٹریٹ موومنٹ کے جس کا آپ نے آغاز کر دی ہے, اس کے نتیجے میں کتنے دنوں تک یا کتنے مہینوں تک خان صاحب کی رہائی ممکن ہے, اور اسی تحریک کے نتیجے میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کو اس سسٹم نے اریسٹ کیا ہوا ہے, جس سسٹم کے خلاف ہماری جدوجہد ہے. آج ہم لاہور ہائی کورٹ اس لیے آئے کہ ہم اپنے وکلاء سے بات کر سکیں. دیکھیں, وکیل جو ہے وہ کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو اگر جو سب سے آپ کو رول پلے کر کے دے سکتی ہے وہ وکیل ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اس ملک میں رول آف لا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اور رول آف لا کی جو سمجھ ہے وہ وکیلوں کو ہوتی ہے کہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم کا کیا نقصان ہوا, 27ویں آئینی ترمیم کا کیا نقصان ہوا, اور رول آف لا کی بحالی میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ وکلاء کا ہوتا ہے. تو آج ادھر لاہور ہائی کورٹ ہم اس لیے آئے کہ جو وکلاء کی تحریک لاہور ہائی کورٹ سے اٹھتی ہے وہ کامیابی ضرور حاصل کرتی ہے. لیکن جب چیف جسٹس کو معزول کیا گیا افتخار چودھری کو, کہ بعد میں اس نے بڑے غلط چیزیں کی ہیں, لیکن وہ اس لیے بحال ہوا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء کھڑے ہو گئے تھے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء کھڑے ہوں گے, اور یہی سے انشاءاللہ یعنی میں کیا سمجھوں کہ آپ لوگ یہاں سے ایک نئی وکلا مومنٹ جو ہے وہ شروع کروانے جا رہے ہیں, یا وکلا جو ہے وہ ہم اپنے پارٹی کی تنظیموں کے ساتھ بھی ملے, ہم اپنے ایم پی ایس کے ساتھ بھی ملے, ہم نے پوری پارٹی کے ساتھ صرف چیف منسٹر صاحب نے ملاقات اس لیے کی تاکہ موبلائز ہو سکے. عمران خان صاحب نے جیل سے کال دی تھی کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنا ہے, ہم نے آغاز کر دیا ہے, ہم اس کو پیک پہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو بھی آگے ہمیں ڈائریکشن دیں گے اور جو بھی وہ ہمیں کال دیں گے, چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اور آئسولیشن کے خلاف بھی ہم بڑا سخت ری ایکشن دیں گے, کیونکہ ہم مزید زیادہ انتظار کریں گے بھی نہیں ان کا کہ جی یہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بن کر اور ہم آرام سے بیٹھے ہوں گے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن آج یہ 2 دن جو ہمارے لاہور میں گزرے, جو لاہور کے عوام نے ہمیں ویلکم کیا, کیونکہ لاہور تو سارا پنجاب اسپیشلی لاہور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جیتے تھے. ہمارے ایک امیدوار لاکھ 1.5 لاکھ لیڈ سے جیتے تھے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے راتوں رات دن دہاڑے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک ان الیکٹڈ حکومت کو مسلط کیا. اور اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک جمہوری حکومت ایسا نہیں کرتی. ابھی ہری پور کا الیکشن تھا خیبر پختونخوا میں, پنجاب کے لوگ وہاں پہ آئے, نون لیگی, ان کے منسٹرز آئے, ان کے لوگ آئے, ہم نے تو کوئی ان کے ساتھ روک ٹوک نہیں کی, ہم نے کوئی ان کے اوپر ایف آئی آرز نہیں کی, کیونکہ وہاں پہ جمہوری الیکٹڈ حکومت ہے. اور یہاں پہ چونکہ یہ قبضہ ہے, تو جب آپ کسی سے قبضہ چھڑاتے ہیں, دیکھیں قبضہ مافیا ہوتا ہے جو زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے, تو جب آپ اسے قبضہ چھڑاتے ہیں تو وہ تو ریزسٹ کرتا ہے, کبھی اسلحے کے زور کے اوپر آپ کے اوپر فائرنگ کرتا ہے, وہ آپ کو روکتے ہیں. تو اس وقت پنجاب کے اوپر قبضہ ہے, تو جب آپ ان سے قبضہ چھڑائیں گے تو ریئیکشن تو آئے گا ان چیزوں کا. تو لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور
पंजाब के ऊपर मुसल्लत शुदा जो हुकूमत है, इंशाअल्लाह हम इसको भगाएंगे। अच्छा शाहिद खटक साहब, मुझे ये बताएं कि केपी में आपकी हुकूमत को 15 साल होने को है और वहाँ पे आप ही की हुकूमत है। यहाँ पंजाब में पिछला टर्न्योर आपका था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, उससे पहले भी मुस्लिम लीग नून। आप पंजाब और केपी का अगर मुआवजा करें तरक्याती कामों में या दूसरे कामों में या गुड गवर्नेंस में, तो आप किसको बेहतर समझते हैं? कहाँ जो है वो ज्यादा आवाम को डिलीवर हुआ है? आपने मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना, पूरा जवाब और ये चलाना भी है, फिर आप चलाते नहीं। बिल्कुल चलेगा। पहली बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ये पंजाबियों का भी है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। इसके लिए चाहते हैं कि ये तकसीम की सियासत करें और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम तकसीम करें, फिर इसको हम रूल करें। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने हमें पाकिस्तानियत का दर्ज दिया, जो एक ही जमात है पूरे पाकिस्तान में जो सबको रिप्रेजेंट करती है, पंजाबियों को भी, पख्तूनों को भी, बलोचों को भी, सिंधियों को भी, और वो है तहरीक इंसाफ। अब ये आप लोगों के मुंह में इन्होंने ये सवाल डाला है या व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला है कि जी इनसे जाके ये सवाल करें। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लें, ये सवाल हमारा है। अच्छा, ये सवाल मेरा है, आपका है या डलवाया गया है? नहीं, ये नहीं ना, ये सवाल हर जगह हो रहा है, मैं इसलिए अच्छा चले, हर जगह हो रहा है, इसलिए मैं आप जवाब देता हूँ। हाँ। मुझे ये बताएं कि सवात कितने पंजाबी आते हैं वहाँ पे टूरिज्म के लिए? बहुत ज्यादा जाते हैं। कितने? बल्कि जो लाहौरी जाते हैं वो तो साल में एक दफा सवात ना जाए तो उनको चैन नहीं आती। कितने? सालाना तो लाखों में जाते हैं। क्यों आते हैं? सियाहत के लिए। सियाहत के लिए आते हैं। आप उनसे जाके सवाल करें कि जब से पीटीआई आई है, पीटीआई से पहले जब वो सियाहत के लिए वहां पे जाते थे और अब जाते हैं, क्या फर्क है? आप ऐसा करें कि मरी की मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप जो मरी पंजाब में है, आप अपना कैमरा उठाए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उनके रोड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें और फिर जो नतिया गली खैबर पख्तूनख्वा में है आप उधर जाएं, आपको फर्क वाज़ेह नजर आ जाएगा। आप मुझे एक मोटरवे, सिंगल मोटरवे जो पंजाब हुकूमत ने बनाई है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे नाम ले दें। स्वात मोटरवे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने बनाई। अच्छा, यहाँ पे बीआरटी चल रही है लाहौर में, पेशावर में चल रही है। हमारी बीआरटी की कीमत 120 अरब, इनकी 530 अरब। क्यों? हमारे दौरे हुकूमत में जब मुराद सईद मिनिस्टर था, उसने कितने मोटरवेज बनाए, कंप्लीट किए, इन्होंने कितने किए? ये कंपैरिजन आप कर ले, बड़ी आसान चीजें हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में कितने रेप केसेस हैं, पंजाब में कितने रेप केसेस हैं? अब डेटा उठा के देख लें, पंजाब में कितने एफआईआर है पुलिस में, खैबर पख्तूनख्वा में कितने? आप डेटा निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। आप किसी से भी जाके, आप किसी भी पंजाबी से जाके पूछ लें कि जब आप खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, आपके केपी की पुलिस का एटीट्यूड कैसा है, पंजाब की पुलिस का एटीट्यूड कैसा है? कोई भी आपको नाके के ऊपर तंग नहीं करेगा। आप कहेंगे मैं मेहमान हूँ, वो आप कहेंगे चाय पीना है, पानी पीना हूँ। एटीट्यूड का फर्क है। और इसके अलावा आप हर सेक्टर में जाएं। देखिए, मुझे आप बताएं कि क्या सेहत कार्ड है पंजाबियों के पास? अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पास है क्या? खैबर पख्तूनख्वा के जो हॉस्पिटल्स हैं, देखिए हमने 15 साल में 1.5 साल तो पिछली दफा हमने डिसॉल्व कर दिया था, जो इमरान खान साहब ने कहा था। आप हॉस्पिटल जाएं, आप लोगों से सवाल करें, उनकी सेटिस्फेक्शन देखें। देखिए, हम कोई, इमरान खान साहब ने हमें एडवर्टाइजमेंट से मना किया है। ये अरबों खरबों रुपए पंजाब की आवाम के अपनी पर्सनल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। आपने सुहेल अफरीदी की तस्वीर टीवी के ऊपर नहीं देखी होगी, आपने इमरान खान की तस्वीर जो है केपी गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट पे नहीं देखी होगी। एक मफरूर सजाई याफ्ता जो लंदन भगोड़ा भागा, नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाते हैं ये लोग एडवर्टाइजमेंट में। देखिए, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जितने हमने डैम्स बनाए, जो आपको सस्ती बिजली बना के दे रहे हैं, जो आपको एनवायरमेंटल सपोर्ट दे रही है, वो बिजली बना रहे हैं। इनसे पूछे कि आप कितनी बिजली बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा आपको गैस दे रहा है पूरे पंजाब को, आप उनसे सवाल करें कि पंजाब कितना गैस दे रहा है पूरे पाकिस्तान को। देखिए, हमारे पास जितने वसाइल हैं, लेकिन हमारे साथ मसला क्या है, या पख्तूनों के साथ, पख्तूनख्वा के साथ जो ज्यादती हो रही है, वो ये कि बंद कमरों में गलत फैसले करते हैं, इनकी मुशीर जो है उनको गलत गाइड करते हैं। ये अफगानिस्तान की इनकी जो पॉलिसी है, इमरान खान साहब की 3.5 साल दौरे हुकूमत में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, एक बम धमाका नहीं हुआ, एक खुदकश हमला नहीं हुआ। वहां पे जो टेररिज्म का, दहशतगर्दी का सफर था, वो टूरिज्म पे खत्म हुआ। लेकिन जो इमरान खान साहब को हटाए, रिजीम चेंज के बाद ड्रोन हमले शुरू हो गए, वहां पे दहशतगर्दी शुरू हो गई, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज का
मसला है, ये इनकी पॉलिसी गलत है। देखिए अफगानिस्तान में जब दहशत गर्दी बढ़ती है उसका इम्पैक्ट आता है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, जब उसका इम्पैक्ट आता है आपके कारोबारी लोग जो है वो मूव कर जाते हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वो मूव कर जाते हैं। तो जब आपका अमन नहीं होगा, जब आपकी अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, मुझे कंप्लीट करने दे, तो जब आपका कारोबारी तबका चला जाए, एक कारखाने में 25-30 हजार लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जब आपका एक कारखानादार मूव कर जाता है आपके 20 हजार लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और सरकार की तो इतनी हैसियत नहीं है पाकिस्तान में कि सब लोग को सरकारी नौकरियां दे। तो ये वो चीजें हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं। रही बात लाहौर की, लाहौर के ऊपर ये पाकिस्तान का 80% बजट लगा रहे हैं, पाकिस्तान का। हमारे जितनी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी ADP है उतनी सिर्फ लाहौर की है। हमारे सालाना तरक्याती बजट 200 अरब 300 अरब जो बामुश्किल वहां तक पहुंचता है, और ये लाहौर के ऊपर इतने पैसे लगाते हैं। और आप जनूबी पंजाब जाए, अब बाहर पंजाब का विजिट तो करें ना, एक लाहौर तो पंजाब नहीं है कि 2 सड़कें बना ले और जी पंजाब बन गया। जनूबी पंजाब के लोग इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, और मियांवाली में जो तरक्की हुई इमरान खान साहब ने की, क्योंकि मियांवाली मेरे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, वहाँ पे मैं मियांवाली देखा हुआ है। उससे पहले तो वहाँ पे इन्होंने ईंट नहीं लगाई थी, जो आउट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है। यहाँ पे आके शोशा करके 2 टिकटाके बना के स्टूडेंट्स को बिठा के और कि जी बड़े जपियां पढ़ रही हैं, सारा प्लान होता है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ऐसा करते हैं एक दिन के ऊपर कॉल देते हैं, मीनारे पाकिस्तान एक हिस्सा ये ले लें, बड़ा हिस्सा हमें दे दें विद इन 24 आवर। अगर लाहौरी, अगर पंजाब के लोग इमरान खान के झंडे के करीब ना आए, लाखों की तादाद में ना आए, हम सियासत छोड़ देंगे। और ये इनका देखिए कि ये बरयानियां दे दें, जिन्होंने जो भी करना है पैसे दे दें, सरकारी मुलाजमों के लिए है, ये जलसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये जलसा नहीं कर सकते। इनके जो भी जलसे होते हैं सारे सरकारी पटवारी होते हैं, उसमें आधे से ज्यादा पंजाब पुलिस, इस वक्त तो पंजाब पुलिस जो है वो मुस्लिम लीग नून की इनकी पार्टी की जिले की तंजीम बनी हुई है। ये पंजाब पुलिस ऐसे है, ये इनकी इंस्टीट्यूट है, ये रियासत के मुलाजिम ऐसे होते हैं कि लोगों को बेइज्जतियां करो, लोगों के घरों में जाके घुसो, लोगों के साथ जुल्म करो, जबर करो, और फिर जब पहले लॉकडाउन करते हैं, पहले बंद करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उनकी बेइज्जतियां करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग नहीं आए। ठीक है, मैं आपको 2 चपेड़े मारता हूँ, फिर देखता तू कैसे आता है। हमारे लोग तो माशाल्लाह फिर भी बहादुर निकल आते हैं। ठीक है, अच्छा शाहिद खट्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अब फाइनली आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो आपकी तहरीक है ये इमरान खान साहब की रिहाई पे जाके ही खत्म हो? करते वाले सवाल से मुतमईन हुए या और बताऊं? ये लोग फैसला करेंगे ना। हाँ, अच्छा, अगर आप और बताना चाहते हैं तो फिर मुझे ये बता दें कि वहाँ KP में कितनी नई यूनिवर्सिटियां बनी है जो आपने बनाई है, और कितने नए हॉस्पिटल्स बने हैं? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हमने 12 नई यूनिवर्सिटीज बनाई, 12। ठीक है, हॉस्पिटल्स हमने 5 बनाए। जो पुराने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे हमने उनको रिनोवेट कराया, हमने उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर फराहम किए। देखिए बिल्डिंग बनाना ना इमरान खान का विजन है ना हमारा है। हमने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में 45,000 डॉक्टर्स भर्ती किए, हमने खैबर पख्तूनख्वा में 62,000 पुराने स्कूल ठीक किए, हमने खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 लाख से ज्यादा असातिज़ा भर्ती किए, ऑन रिकॉर्ड है, जाके चेक करा लो। हमने पटवारी निजाम बेहतर किया, हमने वहाँ पे पटवारी कल्चर का खात्मा किया, वहाँ पे हमने ऑनलाइन। मैं आपको गुड गवर्नेंस की वो एग्जांपल दूंगा जो ये कॉपी करके हमसे लेके आते हैं। आप इनसे ये पूछे कि आपने कितना कर्जा लिया पंजाब का, हमने कितना कर्जा लिया है खैबर पख्तूनख्वा का। हमने, आपको पता है अभी स्टेट विजिट जो हो रहे हैं, बाहर से ममालिक से लोग आ रहे हैं, हमें नहीं आने देते। मरियम नवाज जापान जाते ही बाहर घूम रही है कि जी मैंने पंजाब के लिए चीजें लेके आनी है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी ओवरसीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये उनको इन्वेस्ट नहीं दे रहे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं और कर अब अगर मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं, इस पर हर सेक्टर में हमने हर तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया है। इन्होंने कितने बनाए हैं? हमने वहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड्स बनाए हैं, हमारे दौरे हुकूमत में बने हैं। इन्होंने कितने बनाए? ये 50 साल से रूल कर रहे हैं, हमारे 12-13 साल हो गए। और ये परफॉर्मेंस जो है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कभी भी दोबारा वोट नहीं देते। तीसरी दफा हम क्यों इलेक्ट कर रहे हैं? इसलिए इलेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने दूध शहद की नहरें बना दी है, लेकिन हमारा सिस्टम इनसे बेहतर है। हमारे सिस्टम में लोग खुद को प्रोटेक्ट फील करते हैं। आपको कोई भी पुलिस से एक आध शिकायत आपको मिलेगी। हमने अपने थाना सिस्टम बेहतर किया, कैमरे लगाए पुलिस के ऊपर। अगर आपका एटीट्यूड नहीं है बेहतर, एक भी कंप्लेंट आती है सीएम खुद ही पहुंचा होता है उधर की। क्यों? ऐसे जो मुअत्तल होता है, घर भेजते हैं उनको। क्यों? क्योंकि एक आम शहरी के साथ आपका ये रवैया ना हो। हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाते हैं, हम खुद ही उधर पहुंचे होते हैं। क्योंकि आपने आम शहरी के साथ, वहां पे हमारे शहरी खुद को प्रोटेक्टर समझते हैं। उनको पता है कि ये मुल्क मेरा है, ये सूबा मेरा है, ये रियासत मेरी है। इधर पंजाब में आप किससे भी जाके पूछ लेना, क्या उनकी इज्जत महफूज है?
सारा डरते हैं, रात के अंधेरों में घरों के अंदर जाते खवातीन की बेइज्जतियां करते हैं। अच्छा, अब शाहिद खट्टक साहब इमरान खान साहब पे आते हैं कि खान साहब की रिहाई को आप कैसे देख रहे हैं, कब तक मुमकिन है, और आपको लग रहा है जो आपने आगाज में ही बात की थी कि वकला जो हैं वो कानूनी मुआवनत बहुत बेहतरीन करते हैं और यही ज़रूरी होते हैं, तो क्या पीटीआई अब कानूनी मुआवनत पे ज़्यादा फोकस करेगी या स्ट्रीट पावर पे ज़्यादा जो है ना वो? ये तो अदलिया का इम्तिहान है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस है तमाम के तमाम पॉलिटिकल है। देखिए कल मीना खान अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी तो ये आग बगोला हो गए। जब आप बुशरा बीबी जो कि गैर सियासी खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आप इद्दत जैसे घटिया केस बनाते हैं तो उस वक्त तो आपकी गैरत नहीं जागती। जब आप इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर पानी फेंकते हैं और तेजाब कभी उनके हाथ पैर जो है वो जख्मी करते हैं, जब आप उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं उस वक्त इनको गैरत नहीं जागती। क्या वो किसी की बहनें नहीं है? क्या वो किसी की माएँ नहीं है? तो उस वक्त तो इनकी गैरत नहीं जागती। लेकिन अब जाके जब हम थोड़ा बोलते हैं इनकी गैरत जाग जाती है, औरत कार्ड इनको याद आ जाता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं ये तमाम पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिकल केसेस जो हैं इसका एक ही हल है कि सब आए मिल के आए, एक हम बड़ी तहरीक खड़े करें और पंजाब के लोग साथ दें, और जिस तरह वो दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, नई मिसाके जमहूरियत की भी बात हो रही है, तो अगर कोई नया ऐसा मुआहिदा आता है कि जिसमें नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? देखिए जब भी इमरान खान साहब अंदर से कोई कॉल देते हैं इनको मुज़ाकरात याद आते हैं। जब भी ये कोई डाका डालते हैं, जब भी कोई ये दो नंबरी करते हैं तो फिर ये मुज़ाकरात की बात करते हैं। इन्होंने ओलक्स के ऊपर भेज दिया पीआईए को, जो भी पीआईए भेज दी इधर से मुज़ाकरात के सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ दे कि तवज्जो डाइवर्ट करो। ये बेसिकली जो इन्होंने पीआईए औने पौने दावों भेजा और बाद में पता चलेगा कि इसमें कौन मुलविस है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, तो ये मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं। एक मुलाकात नहीं करा सकते इमरान खान साहब के साथ, तो इनकी हैसियत क्या है, हम क्या मुज़ाकरात करें? बहुत शुक्रिया।